us break down these visuals that are coming in from Noida phase 2, of course, after prices of Uber and Rapido have also increased substantively. Shivani, my colleague, is there to take us through those details. Right, Kriti. In fact, like you pointed out, the protests have gone a little violent, and we are here to show you how the prices of cabs and Rapidos that you book, Uber, Ola, or Rapidos that you book, have increased exponentially. So let me just take you across through these apps one by one to give the viewers a view of how this protest has in fact slipped into every home, because now if you want to book a cab, you will have to pay a hefty price, and you will also take a longer time to in fact reach the location. So I will show you here, this is the Rapido app that we have open in front of our screens right now. This is a mobile phone, and you can see that the cost of a bike ride is around 182 rupees, and usually this is around 120 rupees to Noida phase 2. And let's look at the cab economy. This is the lowest level of cab that you get, and the cost is 431 rupees to 444 rupees. Almost, you are shelling out almost 500 rupees just to get to Noida. And remember, this is a very short distance. This is from Okhla that we are showing you all these prices, and if you book an XL cab, it will cost you 770 rupees. So almost 1000 rupees just to get to Noida from Okhla, which is right next to it. So this is Rapido that we got you. We'll get you Uber as well, because if people use different multiple apps for options. So let's look at how Uber is actually increasing the price because of the protests over there and the presence of police personnel in that area. So let's look at Uber, where the cost of Uber bike is around 204 rupees, and the cost of a sedan is around 430 rupees. So approximately everything is the same. All the costs on apps across the apps, the cost is the same, around 400 to 500 rupees, and if you book an XL, this is around 650 rupees. So clearly we are seeing hefty prices that are in fact being levied by these cab aggregators. We showed you two companies or two apps that people have the options of picking out. So let's also look at the amount of time, because of barricading in the area, because of the presence of heavy police security personnel in the area. The time to reach Noida phase 2 has also increased, Kriti. So let's see how much time it will take us to in fact reach phase 2 of Noida. I have Google Maps open right here with me on our maps, and you can see that the time is around 51 to 48 to 50 minutes. So 50 minutes to reach this, and if you zoom in a little bit and you look at phase 2 of Noida properly, you will see the closures of roads. You can see these red marks. These are closures that have been put in place. This entire road has in fact been closed. So you can see how this will also disrupt traffic movement. So this is not just a protest that is now limited to Noida phase 2. We are seeing its implications on cab applications, and we are also seeing how traffic is being disrupted, Kriti. Yes, of course. Thanks very much, Shivani, in fact, for bringing that update for our viewers. A distance of about 20-30 minutes now. It's taking about double that time to reach to Noida phase 2 from our current location, which is at New Delhi in Okhla. Viewers, with that, we also have some ground reports coming in by my colleague from the phase 2 where the protests are active. Let's take a look.
नोएडा में श्रमिकों का सैलरी वृद्धि को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के बीच में हम प्रदर्शनकारियों के बीच में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ मुख्य वजहें हैं जिनको लेकर प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्योंकि आज देखने को मिला कि सुबह के समय में प्रदर्शन उग्र भी हुआ। जगह जगह कई जगहों पे आगजनी, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव जैसी चीजों को भी देखने के लिए मिला, जिसको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करा। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? बढ़ाने के लिए मांग सैलरी सब जगह बढ़ गई है, बस हमारे नोएडा में नहीं बढ़ी है। हम भी 134 कब से सैलरी नहीं बढ़ी आप लोगों की? हम लोगों के इसी महीने से सब बोल रहे थे बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा नहीं रहे। अभी क्या सैलरी आप लोगों की? अभी बस 11,000 सैलरी है। 11,000 रुपए सैलरी में आपका पूरा हो जाता सारी नहीं चीज? होता है, कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता तो हम लोगों को, हमारे अगर पति की सैलरी सही रहता तो हम लोगों को ड्यूटी करने की जरूरत नहीं रहती, हम लोग घर में रहते आराम से। कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है इसके बाद? 13 घंटे करते हैं और 1 मिनट भी हो जाता तो गेट बंद कर देते हैं बाहर सुबह में, और शाम को 15 मिनट हम लोगों का वेस्ट जाता है। ओवर टाइम को लेके भी कुछ मांगे, ओवर टाइम की क्या हम पॉलिसी? तो सैलरी के हिसाब से दे रहे हैं, अगर डबल चाहिए, डबल सैलरी चाहिए, डबल। कुछ और भी लोग हैं, क्या मांगे हैं आपकी? यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? जी हमारी मुख्य मांग ये है, हमारी सैलरी बहुत कम है। हमारी सैलरी, ऑपरेटर की सैलरी 22,000 होनी चाहिए। LRP लक्ष्मी मोड़ B201 ओवर टाइम डबल होना चाहिए। हमारी मुख्य मांग यही है। आज देखने को मिला कई जगह पे प्रदर्शन उग्र भी करा गया, कई जगह तोड़फोड़ हुई, आगजनी भी हुई। उसको कैसे देखते हैं? आप लोगों के बीच में से कुछ लोग ये गलत काम भी कर रहे हैं, उससे आप लोगों के बीच में से लोग हैं या वो कहीं बाहर से आ रहे, क्या लग रहा है? बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। वो कंपनी का कोई लोग नहीं है यहाँ पे, बाहर के लोगों ने किया है ये। बाहर के लोगों ने किया है। तो आप लोगों की मुख्य मांगे सैलरी के अलावा भी कुछ और मांगे हैं? हमारी सैलरी बढ़े और थोड़े आज की डेट में। आप ही बताओ। सैलरी जो गवर्नमेंट का रेट है वो हमको चाहिए, प्लस डबल ओवर टाइम, और टाइम से सैलरी चाहिए। नहीं हमें 2 बार ये मिलता, ओटी मिलती 22 तारीख को, 28 तारीख को। पीछे आखिरी बार तनख्वाह कब पड़ी थी आप लोगों की? आखिरी बार जब सैलरी वृद्धि हुई थी? 6 साल हो गए अभी तक। पिछली साल डीए, वो भी डीए बढ़ा मात्र 17 रुपए। 17 रुपए का डीए? रुपए, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ा है। 17 रुपए बढ़े हैं, कुछ बढ़ नहीं रहा है। आप भी काम करती हैं, महिला है, घर का पालन पोषण कैसे चलता है, क्या कुछ समस्या है? 18,000 सैलरी में कुछ नहीं होता, हमारे लोगों की बढ़नी चाहिए सैलरी जी। कम से कम 18,000 तो हेल्पर की होनी चाहिए। आप हेल्परी का काम करती हैं यहाँ पे? का काम करते कितने दिनों से काम करते मैं हैं? हो गया 1 साल हो गया इसमें करते करते। 1 साल से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी आप लोगों की? नहीं है, वही है। अब कितनी सैलरी चाहती, कितनी मांग है? 18,000 तो हेल्पर की होनी चाहिए, 18,000 तो होनी चाहिए। 18,000 रुपए सैलरी की मांग है। ओवर टाइम को लेके भी कुछ पॉलिसी? टाइम में भी डबल होना चाहिए, संडे भी डबल, ओवर टाइम भी डबल होना चाहिए। कितने घंटे की शिफ्ट करती हैं आप लोग यहाँ पे? 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 12 घंटे की। 12 घंटे। आप क्या काम करती हैं यहाँ पे? यही लक्ष्मी रिमोट में लक्ष्मी रिमोट में काम करती हैं, पैकिंग यूनिट में काम करती हैं आप लोग। हेल्परी का काम करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर। मनोज, क्या कुछ समस्याएं आज आप लोग यहाँ किस मांगों को लेकर, किस कंपनी में काम करते हैं? मैं लक्ष्मी रिमोट भी 134 में करता हूँ। मैं SMT डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पे लोग जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं उनको न तो लंच प्रोवाइड किया जाता है न तो डिनर, और उसके बाद टाइमिंग उनकी ये रहती है, अगर कोई बंदा 15 मिनट जैसे लेट भी हो जाता है ना तो गेट बंद कर देते हैं, और उसके बाद 5 मिनट, अगर 5 मिनट भी लेट है तब भी गेट बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि 15 मिनट पहले आना है। और उसके बाद कंपनी ना हमारी लंच का टाइम काटती है, तो हमको 8.5 घंटे की शिफ्ट, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8.5 घंटे काम कराती है। फिर उसके बाद जब ओवर टाइम लगाती है तो हाफ नाइट लगाती है, और लोगों को हाफ नाइट लगाती है तो उसका सैलरी के अकॉर्डिंग उसका ओवर टाइम सिंगल। लगातार आपकी मांग है, ज्यादा घंटे काम कराया जाता है, तनख्वाह कम है, वेतन कम है, और ओवर टाइम को लेकर तमाम मांगे हैं। और भी लोग हैं, तो आप और क्या कुछ समस्या है? इसके अलावा भी कोई और समस्या है जिसके लिए आप यहाँ पे? बस सर यही समस्या है, सैलरी बढ़ जाए और कोई दिक्कत नहीं। सर 5,000 रुपए रूम किराया है, 5,000 रुपए रूम किराया है, 11,000 सैलरी है। 11,000 में क्या कर लेंगे ये बताइए? साढ़े 300 रुपए किलो गैस है। प्रदर्शन, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, जिला प्रशासन की तरफ से भी किसी ने बातचीत करी आप लोगों से? कोई नहीं सर, कोई नहीं। आज सर जी 5 साल से रेट बढ़ने के बाद हुआ, 5 साल से कोई रेट नहीं बढ़ रहा है। डीएम नोएडा कह रहे हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप लोगों में से किसी ने बात करने की कोशिश? कोई बात करने के लिए नहीं है सर जी। देखिए नौकरी करने आए, हम कहाँ दौड़ेंगे? यहाँ एक दिन नौकरी करेंगे तो हमें 500-600 रुपए घटा है सर।
500-600 रुपए में यहाँ घाटा करेंगे तो रूम किराया क्या देंगे, राशन वाला क्या देंगे, दवाई सुइया क्या करेंगे। मेन प्रॉब्लम ये है सर। बिल्कुल, तो लोगों की तमाम मांगे हैं जिसमें तनख्वाह वृद्धि, डबल ओवर टाइम और ज्यादा एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स पे काम कराने की समस्याओं को लेकर आज तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फेज 2 में ये प्रदर्शन चल रहा है। नोएडा के कई हिस्सों में, कई इलाकों में एक्सपोर्ट फैक्ट्री और कामगार मजदूर जो है जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा इसमें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि सुबह से प्रदर्शन कई जगहों पे उग्र है और नोएडा की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना आज कहीं रफ्तार रुकी हुई है, जगह जगह पे जाम लगा हुआ है। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। All right, viewers, that was my colleague bringing you the ground report. Clearly, the workers are agitated and demanding increment of pays, overtime benefits and weekly offs. They're complaining their salaries and wages should be as per the government mandates, and the DNS allowance should be transferred as is as per the government orders. For now, commuters are also complaining of being stuck in traffic. The traffic blockade due to the workers' protest, in fact, has left several commuters frustrated, and many have also taken to social media platforms urging authorities to intervene and clear the roads. Many complained of being stuck in traffic that's not moving despite starting early to avoid the peak hour congestion. In fact, an employee of a private company said she left her home around 7:30 a.m. but remains stuck in traffic for over an hour without any significant movement whatsoever. There is no movement at all. This is the statement that she put out. People are getting down from vehicles and trying to figure out what's happening here. Ali Khan is there with me. Ali, क्या अभी भी ट्रैफिक कंजेस्टेड है या मूवमेंट हो रहा है नॉर्मल लोगों के लिए जो उस रास्ते से जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम नोएडा की अभी भी बात करें तो तमाम ऐसे रास्ते हैं जो अभी भी बंद हैं, क्योंकि नोएडा को फेज 2 जोड़ने वाला जो सड़क है उसे बंद करा गया। बंगेल एलिवेटेड रोड बंद है। नोएडा के सेक्टर 15 से चिल्ला एलिवेटेड की बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़क उसे भी बंद किया गया, क्योंकि तमाम ये सड़कें हैं जहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं। नोएडा के सेक्टर 62 वाली जो सड़क है उसे भी बंद किया गया। कई जगह पे प्रदर्शनकारी सड़क पे हैं और कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें आगे संवेदनशील इलाका है तो उस जगह पे जाने से रोकने के लिए लोगों को उन सड़कों को बंद किया गया। तो तमाम सड़कों को अभी बंद किया गया है और अभी भी नोएडा में कई ऐसी जगह है, कई ऐसी स्थिति है जहाँ पे चक्का जाम जैसी स्थिति के लोग सुबह के निकले हुए हैं पर अभी तक भी अपनी गंतव्य स्थल पे नहीं पहुंच पाए। तो लगातार पुलिस प्रयास करी कि तमाम मार्गों को खोला जा सके, पर जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ पे समस्याएं, जहाँ पे ये चल रहा प्रदर्शनकारी हैं, वहां जाने वाली सड़कों को रोका गया है, वहां से डाइवर्जन रखा गया है और लोगों से बोला जा रहा है कि जो अन्य मार्ग हैं उनका प्रयोग करें, उन मार्गों पे ना आए। तो तमाम एडवाइजरी जारी करी जा रही है नोएडा ट्रैफिक विभाग की तरफ से। जो मुख्य मार्ग है जहां जहां प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उन सड़कों की तरफ से जाने की जगह वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। जी अली, हमारे साथ बने रहे। वी ऑल्सो हैव नाउ माय कॉलीग यश आहूजा फ्रॉम द न्यूज रूम विद सम अपडेट्स. Yash, what is it that you're picking up? Yes, Kriti,